پاکستان کے ہر خطے کی الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں صدف علی خان اور فورس نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیع اقبال۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ مافیا کے خلاف کارروائی کا وعدہ پورا۔ وزیر اعظم عمران خان نے شوگر انکوائری رپورٹ پر 7 بڑے ایکشن کی منظوری دے دی۔ گزشتہ 25 سال کے دوران شوگر ملوں کو دی جانے والی تمام سبسڈیز کی تحقیقات نیب ریفرنس بھیجے جائیں گے۔ ریگولیٹری فریم ورک، ریکوری اور چینی کی قیمتوں کو واپس لانے کے حوالے سے سفارشات کی منظوری۔ شوگر ملز میں انکم اور سیلز ٹیکس فراڈ، بے نامی ٹرانزیکشن کا معاملہ FCR کے حوالے 90 دن کے اندر کارروائی اور ریکوری شروع کرنے کا حکم۔ تحقیقات میں ہمارے سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے افراد میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت تمام تحقیقات کو مانیٹر کرے گی۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی میڈیا بریفنگ۔ بلاول بھٹو ہیں وہ روز تو نہیں، مہینے میں بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر ابھرتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی ایسا ماحول آتا ہے جس میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ذرا سخت ہو رہا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی جس میں وہ اکٹھا کر سکیں۔ یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ ملک کے اداروں کو لوٹنے والوں کا احتساب کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اپوزیشن اپنی کرپشن چھپانے کے لیے شور مچا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی کے معاملے پر خود کمیشن بنایا۔ سب کا خیال تھا کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں کی جائے گی۔ شوگر مافیا میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ وفاقی وزیر حکومت کا گندم آٹے کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ گندم کی درآمد پر عائد ڈیوٹی مکمل طور پر ختم۔ درآمدات کی مقدار پر پابندی نہیں ہوگی۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حمل کے لیے تمام پابندیاں اور چیک پوسٹ سے ختم۔ درآمد نجی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل، پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات بھی زیر غور۔ باہمی مقاصد کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع شوپیاں میں 5 کشمیری نوجوان شہید۔ نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4960 کیسز کا اضافہ، 67 اموات۔ جاں بحق افراد کی تعداد 2002 ہو گئی۔ 98,943 میں سے 33,465 صحت یاب۔ بلوچستان میں بین الصوبائی اور بین الاضلاعی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت۔ مسافروں اور بس عملے کو ہر صورت ماسک پہننے کی ہدایت۔ بسوں، کوچوں اور ویگنوں میں ہینڈ سینیٹائزر کی سہولت لازمی قرار۔
دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 70,81,000 سے تجاوز کر گئی. 4,05,000 مریض جان کی بازی ہار گئے. 34,55,000 صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,12,000 سے بڑھ گئی. برازیل میں ہلاکتیں 36,000 ہو گئیں. برطانیہ میں 40,542 افراد ہلاک. بھارت سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں 6 نمبر پر آ گیا. 7,200 افراد ہلاک. کراچی میں لیاری کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی. ایک خاتون جاں بحق. متعدد زخمیوں کو عمارت سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ملبے تلے دبے دیگر افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ہیڈ لائنز آپ جانیے. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں قانونی طور پر اربوں روپے کی سبسڈی دینے والوں کے خلاف کارروائی اور ان سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس لینے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم نے فیصلہ معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کی طرف سے کمیشن کی رپورٹ پر اپنی سفارشات پیش کرنے کے بعد دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں ریاض برکی. معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی اور شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں انہیں بریفنگ دی. وزیر اعظم عمران خان نے سفارشات کی منظوری دے دی. ملاقات کے بعد میڈیا بریفنگ میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ شوگر مافیا کے خلاف 7 بڑے ایکشنز کی منظوری دی گئی ہے. پورے 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے. نیب اس کے اندر کرمنل انویسٹیگیشن کرے اور جو لوگ چاہے انہوں نے یہ سبسڈی دینے میں ان کا تعلق وہ سیکٹری ہوں وزیر ہوں جو بھی جس عہدے پہ بھی براجمان ہوں ماضی میں رہے ہوں ابھی ہوں ان کے خلاف ایکشن ہو. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 25 سال کے دوران شوگر ملوں کو دی جانے والی تمام سبسڈیز کی تحقیقات کے لیے نیب کو ریفرنس بھیجنے کی بھی منظوری دی. شوگر کا کاروبار آپ سمجھتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں اس کے اندر سیاسی خاندان آئے اور انہوں نے کوٹا سسٹم کے تحت اپنی ملیں لگائی. ایک حکومتی خاندان کی درجنوں شوگر ملیں تھی اور پھر وہ خود ہی سبسڈی دیتے تھے. ایک بڑے خاندان نے انڈیا کو بہت زیادہ چینی ایکسپورٹ کی تھی اور اس کی بعد میں بہت زیادہ سبسڈی بھی لی تھی. تو وہ تمام معاملات کے لیے بھی ریفرنس نیب کو بھیجا جا رہا ہے کہ نہ صرف ان 5 سالوں میں جس میں ہمارے سال کی بھی سبسڈی شامل ہے آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں خود احتسابی کی اگر اس کے علاوہ کوئی مثال ملتی ہے تو میں یہاں موجود ہوں مجھے بتا دیجیے. بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ فورینسک آڈٹ کے نتیجے میں تمام شوگر ملوں میں سیلز اور انکم ٹیکس فراڈ اور بے نامی لین دین کے شواہد ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 90 دن کے اندر تحقیقات کر کے ریکوری کے لیے کارروائی کرے. اگر حمزہ شوگر مل کو دیکھا جائے تو صرف ایک سال میں ان کی تقریباً 1.19 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ سامنے آیا. دوسرے سال میں 2.88 ارب کا سامنے آیا. العربیہ کے 2 سال کا جو ٹیکس سیلز ٹیکس کا ہے وہ تقریباً 1.25 سے 1.5 ارب روپے کی سیدھی ٹیکس ایویژن ہے جس کے ثبوت موجود ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ مسابقتی کمیشن کی تشکیل نو کی گئی ہے اور نئی ٹیم ایک ہفتے میں چارج سنبھال لے گی. کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ کارٹلائزیشن کی تحقیقات کر کے اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے 90 دن میں رپورٹ پیش کرے. گندم کی برآمد کے لیے سبسڈی لینے اور برآمد نہ کرنے اور اس حوالے سے فراڈ کی تحقیقات اور ریکوری کے لیے اسٹیٹ بینک کو 90 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے علاوہ FIA اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ 90 دن کے اندر کارپوریٹ فرمز میں مختلف قسم کے فراڈ کی تحقیقات کر کے متعلقہ عدالتوں میں مقدمات قائم کریں. FIA کو افغانستان کو جعلی برآمدات اور منی لانڈرنگ جبکہ مختلف شوگر ملوں کی طرف سے صوبائی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منظور شدہ صلاحیت سے زیادہ کرشنگ گنے کے وزن میں کمی اور کسانوں کو پوری اور بروقت ادائیگی نہ کرنے کی تحقیقات کی ذمہ داری اینٹی کرپشن کے حوالے کی گئی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر صنعت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دی جو شوگر پالیسی کی تیاری کے ساتھ چینی کی قیمتوں کا تعین کرے گی. بلاول بھٹو کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے سوال پر وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ تحریک انصاف نے قومی اداروں کو لوٹنے والوں کا احتساب کرنے کا عزم کر رکھا ہے. جبکہ شہزاد اکبر صاحب ذرا وہ نظر آتے ہیں ٹی وی میں تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی جس میں وہ اکٹھا کر سکیں. یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں. ان کو پتا ہے کہ جو اب اکاؤنٹیبلٹی کا شکنجہ ہے وہ اپنے فائنل اسٹیجز میں.
वजीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए शोर मचा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से एहतसाब का वादा किया था और कौमी दौलत लूटने वालों को अवाम का पैसा वापस करना होगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गंदम की ज़रूरियात को पूरा करने और आटे की कीमतों पर कंट्रोल को यकीनी बनाने के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में यह फैसला किया गया कि मुल्क भर में आटे और गंदम की वाफ़िर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम के बैन-ए-सूबाई नकलो हमल के हवाले से तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर उठा ली जाएँ और तमाम चेक पोस्टें खत्म कर दी जाएँ। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि निजी शोबे के जरिए गंदम की दरामद की जा सकेगी और इसकी मिकदार पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इजलास में फैसला किया गया कि गंदम की दरामद पर पहले से आयद 6% और इजाफी 2% ड्यूटी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। इजलास में गंदम और आटे की बैरूनी मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाने समेत ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार, सूबाई हुकूमतों की जानिब से गंदम की खरीद, मौजूदा स्टॉक और ज़रूरियात का जायजा भी लिया गया। माली साल 2020-21 के लिए वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्वज़ा बजट के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने मुआशी टीम की जानिब से बजट महसूलात, इखराजात और सूबाई हुकूमतों की तरजीहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से गैर मामूली हालात हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए गैर तरक्याती इखराजात में कटौती की जाए और तरक्याती इखराजात में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर इन मंसूबों के हवाले से तरजीहात मुरतब करने और इन्हें अमली जामा पहनाने की हिदायत की, जिनसे रोजगार के मौके पैदा हों और मईशत का पहिया भी तेजी से चले। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन बड़े शहरी इलाकों में कोरोना वायरस की वबा ने बुरे असरात डाले हैं, उन इलाकों में रोजगार के भरपूर मौके पैदा किए जाएं। वज़ीर आज़म ने सरकारी और निजी शराकत के तहत मंसूबों को अमली जामा पहनाने की गर्ज से निजी शोबे के लिए आसानियां पैदा करने और सेहत के शोबे की अपग्रेडेशन की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में वफाकी वज़रा, मुशीरान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और वज़राए खजाना ने शिरकत की। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मी खलीलजाद ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत अफगान मफाहमती अमल, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान पनाह गुज़ीनों के मामलात पर गौर किया गया। मुलाकात में बाहमी मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने कहा है कि शुगर रिपोर्ट की रोशनी में रिकवरी होगी, सजाएं मिलेंगी, माफिया से निजात के लिए निज़ाम की दुरुस्तगी होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। एक बयान में वफाकी वजीर का कहना था कि इन फैसलों के बाद अब मजीद ऐसा नहीं होगा, महंगाई से आवाम को निजात मिल जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ कहती थी शुगर इंक्वायरी नहीं होगी, आज इंक्वायरी और एक्शन कौम के सामने है। अपोजिशन के बयानात हवा में तहलील हो गए। इमरान खान ने साबित कर दिया कि उनका मफाद मुल्क और कौम है। जिक्र करते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई में काबिज फोर्सेज ने शुपैया के इलाके जीनापुरा में मुहासिर तलाशी के दौरान 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय फौज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर की। नौजवानों की शहादत के फौरन बाद काबिज हुक्काम ने शुपैया और कोलगाम अजला में इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल कर दी। भारतीय खुफिया एजेंटों की तरफ से भेस बदलकर मुसलमानों की एक
درگاہ پر حملے کے خلاف श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का यह कहना था कि भारत खित्ते में फिरका वाराना इंतशार पैदा करने के लिए ऐसी घिनौनी कार्रवाइयां कर रहा है। इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर मौलाना मसरूर अब्बास, पीरवान विलायत के सरबरा मौलाना सिब्त शबीर खुमी और तहरीक वहदत इस्लामी ने श्रीनगर में अपने बयानात में दरगाह पर हमले की मजम्मत की है। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और हक खुद इरादियत की बुनियाद पर तनाज़े कश्मीर का हल चाहते हैं। उन्होंने तनाज़े कश्मीर पर किसी भी सहपरी की मुज़ाकरात में रियासती अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों को मद्देनजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। अशरफ सहराई ने मादरे वतन पर भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इयादा किया। राजौरी में इजलास से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम ने भारत में फैशिस्ट मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम के चेयरमैन देवेंद्र सिंह बहल की सरकर्दगी में वफ्द ने रिटायर्ड जस्टिस सैयद शरीफ बुखारी की वफात पर बारामूला के इलाके करेरी में इनके लवाहिकीन से ताज़ियत की। जस्टिस शरीफ कुछ रोज कबल लाहौर में इंतकाल कर गए थे। सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल सिख फेडरेशन, सिख स्टूडेंट फेडरेशन, जम्मू कश्मीर सिख काउंसिल और गोमी टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ सिख तंजीमों ने अपने बयानात में 1984 में ऑपरेशन जू स्टार के दौरान भारतीय फौजियों के हाथों हलाक होने वाले हजारों सिखों को खराज अकीदत पेश किया। आपको बताते चले कि मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि तहकीक के मुताबिक मास्क का दुरुस्त इस्तेमाल कोरोना की रोकथाम में मुआविन है। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देखिए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से SOPs जारी की गई हैं, जिसके तहत मार्केटों, दुकानों और ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना जरूरी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती हिदायत के बरक्स मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी मुल्क में जहाँ पे कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, 40 से 60% तक उस बीमारी के फैलाव को मास्क के सही इस्तेमाल से रोका जा सकता है। दुकानों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और कारखानों में जो SOPs का निफाज है उस हवाले से ऑलरेडी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और जहाँ जहाँ इन SOPs का एहतराम नहीं किया जाता या उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, वहाँ पे एक्शन भी लिया जा रहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि मास्क जरूर पहने और एहतियात करें। हुकूमत कोरोना वायरस के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। एक मास्क और दूसरे मुअम्मर अफराद की हिफाजत और बीमार लोगों की हिफाजत, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर हम खास तौर पे एहतियाती रवैया अपनाएं तो बहुत सारी बचत हो सकती है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि मरीजों की सहूलत के लिए पाक निगहबान मोबाइल ऐप का इजरा भी किया गया है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। न सिर्फ मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,960 केसेस का इजाफा हुआ और 67 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 98,943 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2002 है, जबकि 33,465 सेहतियाब हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 4,979, पंजाब में 37,090, सिंध में 36,364, खैबर पख्तूनख्वा में 13,001, बलूचिस्तान में 6,221, गिलगित बल्तिस्तान में 927 और आज़ाद कश्मीर में 361 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। और पाकिस्तान में पहली मरतबा हंगामी खदमात पहुँचाने वाले मुक़य्यद इदारे
ईदी फाउंडेशन और छिपा ऑन बोर्ड। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में निगहदाश्त की सहूलियात, वेंटिलेटर्स और बिस्तरों की दस्तयाबी के हवाले से खुसूसी वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम सूबों में खिदमात पहुंचाने वाले इदारों के सरबराहों ने शिरकत की। शुरका को रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आगाह किया गया और पहली बार इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को सुना और ब्रीफ किया गया। मुल्क के 1579 अस्पतालों को इस रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक किया गया है। 804 अस्पतालों का डाटा भी इस सिस्टम में मौजूद है। शुरका को पाक निगहबान मोबाइल ऐप के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी सहूलियात के हवाले से बता रहे हैं मोइन सुल्तान अपनी रिपोर्ट में। दुनिया भर के लिए कोरोना वायरस एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया, जिसने बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के सेहत के निज़ाम को बुरी तरह मुतासर किया है। शहरियों को कोरोना वायरस से बचाने और कोरोना के मरीजों को सेहतयाब बनाने के लिए पंजाब हुकूमत मौसर इकदाम उठा रही है। मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों में भी इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर के तमाम बड़े अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक वेंटिलेटर्स और बेड्स की तादाद मौजूद है, जिसमें इजाफा भी किया जा रहा है। पंजाब में मरीजों की तादाद 37,090 है, जबकि सेहतमंद होने वाले अफराद 8,109 हैं। तदर्सीस अस्पताल लाहौर, एक्सपो सेंटर, PKLI समेत दीगर करंतना मराकिज और अस्पतालों में 9,000 से ज्यादा बिस्तर मौजूद हैं, जिनमें से 6500 खाली हैं। इसी तरह 2287 वेंटिलेटर्स में से 1826 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। हुकूमत की होम आइसोलेशन की पॉलिसी से ऐसे मरीज जिनकी हालत पचीदा नहीं है, इन्हें घर पर ही तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की बनाई गई कोरोना के हवाले से हेल्पलाइन और टेलीमेडिसिन के जरिए इन मरीजों के साथ राब्ता रखा जा रहा है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस की सूरत हाल की निगरानी कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर मजीद वेंटिलेटर्स और तिब्बी अमले के लिए सामान समेत दीगर आलात की फराहमी में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ साथ मरीजों को सहूलियत फराहम करने के लिए अस्पतालों की इस्ताद कार में मुसलसल इजाफा कर रही है। मोइन सुल्तान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। और एहतियात में ही सलामती है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 98,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 33,000 से ज्यादा मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में शिफायाब होने वालों के मोजी वबा के बारे में क्या तासुरात हैं और हम वतनों से वो क्या कहना चाहते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं आसिम रिजवान की ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर में 23,100 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुतासर अफराद की तादाद 4,960 रही। पंजाब में अब तक मजमूई तौर पर 37,090 लोग मौलिक वबा से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 683 अमवात हुई हैं। पंजाब में आवाम की हिफाजत के लिए ज़वाबित-ए-कार पर अमल दरामद की मुहिम सूबे भर में पूरी कुव्वत से जारी है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। मेरे घर के 17 लोगों को पॉजिटिव टेस्ट आया था। मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब हुकूमत, जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे खाने पीने और बहुत ही अच्छा ख्याल किया, हमारी बहुत मदद की। आवाम हर चीज़ का ख्याल रखे, कोरोना को मजाक ना समझे, SOPs का और मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल रखे। बहुत से खतरात हो सकते हैं इस चीज़ से। अपने घर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। सिविल इंतजामिया की मदद और तिब्बी साजो सामान की जरूरियात का जायजा लेने के हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में माहिरीन की टीम बिशमूल सूबा पंजाब पूरे मुल्क का दौरा कर रही है। इस सिचुएशन में खुद को पैनिक नहीं करना। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि खुदा न खास्ता उनको कोरोना हो गया तो शायद वो नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे लोगों के लिए बचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। कोरोना खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आजकल जैसे लोग फिर रहे हैं बीमार बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में, खुदा के लिए अपने घरों में रहें, अपने आप को महफूज रखें। बहुत मुश्किल है जो जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, और ये जो सांसें हैं ये बहुत अहमियत की हामिल हैं।
पंजाब के अस्पतालों की सलाहियतों में इजाफे और जरूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 72 नए इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं, जो कि फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया करने वाले इदारों को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। ब्रीफिंग में पंजाब की नुमाइंदगी डायरेक्टर जनरल 1122 डॉक्टर रिजवान ने की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुनिया भर में कोरोना वबा से लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 4,04,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि मुतासिर होने वाले 70,81,000 अफराद में से 34,55,000 सेहतियाब हो गए। सऊदी अरब भी उन 15 ममालिक में शामिल हो गया है जहां 1 लाख से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। भारत में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अमरीका 20,07,000 केस और 1,12,470 अमवात के साथ सरे फहरिस्त है। बरतानिया में 40,542 जबकि ब्राजील में 36,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। रुख करेंगे कौमी खबरों के जानिब। कराची के इलाके लियारी लियाकत कॉलोनी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला रहायशी इमारत जमीन बोझ हो गई। अब तक मलबे से 1 खातून की लाश और 6 जख्मियों को निकाला जा चुका है। मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा है और रेस्क्यू टीमें ताहाल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। हादसे की मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट में। कराची में लियारी लियाकत कॉलोनी खड्डा मार्केट के इलाके नयाबाद में 5 मंजिला इमारत जमीन बोझ हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक ये कॉर्नर बिल्डिंग थी और इसमें 45 फ्लैट्स बने हुए थे, जबकि ये 2 प्लॉटों पर तामीर की गई थी। इलाका मकीनों के मुताबिक ये बिल्डिंग पहले ही मखदूश करार दे दी गई थी और रमजान के महीने में SBCA की जानिब से इसे खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। शाम 5 बजे करीब ये बिल्डिंग झुक गई। इमारत के रिहायशी बिल्डिंग खाली कर रहे थे कि इमारत मुनहदम हो गई और उस वक्त इसमें मौजूद रिहायशी और मजदूर जो सामान शिफ्ट करवा रहे थे इस इमारत के मलबे तले दब गए। नोटिस लिया, 5 बजे पिलर झुके तो बिल्डिंग आधी खाली हो गई थी। अभी सामान ही उतार रहे थे तो पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये बिल्डिंग पहले झुक गई, उसके बाद ये आगे नीचे गिर गई। मेरे को बहन ने इतना ही बोला है, बोलता मैं अभी सामान निकाल रही हूँ तो बाद में फोन करना, बस मेरा इतना ही बात हुआ उससे। 2 बिल्डिंगों को और भी नुकसान हुआ है, सही है, उसकी भी हालत खस्ता हो जाएगी। प्लीज थोड़ा उसको भी देखा जाए, उसमें और लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर गुडविल पे फ्लैट है। गुडविल का मतलब ये होता है अगर बिल्डिंग गिर गई तो कानूनी तौर पे उसका कोई मालिक नहीं होता। तो ये बेचारे अगर 10, 15 लाख, 20 लाख का फ्लैट जो कि 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 20,000 रुपए मंथली कमा रहा है और वो बेचारा 15-20 लाख का फ्लैट कैसे ले सकता है? तो कुछ हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, कोई मदद करनी चाहिए। कमिश्नर कराची ने जाए वक़्वा का दौरा किया और बताया कि रेस्क्यू का काम जारी है, ताहम रेस्क्यू का काम मुकम्मल होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इस वक्त प्रायोरिटी है जान बचाना, तो वो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपको जिसके बारे में तफसील बताऊंगा। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। जख्मियों को सिविल अस्पताल और दीगर करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। एधी छीपा की इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गई, जबकि पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की इमदादी टीमें भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि मलबे तले अफराद को निकालने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़िम वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में अपने वतन की मदद और खिदमत की है। उनके मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से इस्लामाबाद सबसे वीडियो खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा दुबई कौंसल खाने ने 196 पाकिस्तानियों को मुफ्त टिकट फराहम किया, जो कि अहसन इक़दाम है। ये वो पाकिस्तानी हैं जो मेहनत करके अपनी रेमिटेंसेस के जरिए पाकिस्तान की मईशत को सहारा देते हैं और आज भी हमारी एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो हमें सहारा दिए हुए हैं। द क्रेडिट गोज टू ओवरसीज पाकिस्तानीज। They are still supporting Pakistan, not just supporting their families, they're supporting Pakistan economy. ये बहुत important लोग हैं और इनकी खिदमत, इनकी इज्जत और इनका एहतराम हमारे फराइज में शामिल है। और कोरोना वायरस की वबा से जहां रोजमर्रा के मामलात जिंदगी मुतासर हुए हैं, तो वहीं थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतियात में भी खातर ख्वाह कमी आ गई है। तफसीलात बता रहे हैं हसन तारिक पर अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना
वायरस की वबा में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की दस्तयाबी शदीद मुतासिर हुई है। कैंप्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग भी थोड़ा सा डर रहे हैं, तो लेकिन इन बच्चों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। थैलेसीमिया मेजर को हर 20 to 25 डेज के बाद ब्लड लगता है, उसके बगैर बच्चा एनीमिक हो जाता है, एनीमिया होता जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन उसकी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में नहीं जाते हैं, वीक होते होते उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपको भी नुकसान नहीं होता, उल्टा किसी को फायदा हो रहा है, किसी को जिंदगी मिल रही है। आपके हर 3 महीने बाद सेल टूट जाते हैं पुराने, तो नया खून बनता है, तो एक तरह से आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा। ब्लड डोनेट करना एक सदका जारिया है। अगर आप किसी की जिंदगी बचाते हैं, एक इंसान की जिंदगी बचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा रहे हैं। थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस की वबा में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को भी याद रखें और खून का अतिया देकर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़िर, मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क के 46 अजला में मौजूद टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। NDMA के मुताबिक टिड्डी दल से बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब का 1 और सिंध के 3 अजला मुतासर हैं। बलूचिस्तान में खुशदार, अवरान, नोशकी, चागी, गवादर, अथल, केच, पंजगोर, खारान, वाशूक और कोयटा के अलावा दूसरे अजला मुतासर हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, करक, कुरम, नौशहरा और खैबर पख्तूनख्वा के अजला मुतासर हैं, जबकि पंजाब के जिला मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है। सिंध में मटियारी, जामशोरो और हैदराबाद में टिड्डी दल हमलावर है। NDMA के तर्जुमान का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों के सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन में 1122 टीमों ने हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,55,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया। 4,230 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बलूचिस्तान में 3500 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे हुआ। पंजाब में 30 हेक्टेयर पर स्प्रे किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 600 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट किया गया। सिंध में गुज़श्ता रोज 100 हेक्टेयर रकबे का ट्रीटमेंट हुआ और अब तक पूरे मुल्क में 5,24,500 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे इस्तेहकाम और जिद्दत की जानिब गामज़न हैं। पाकिस्तान पोस्ट आज से डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने 2 रोज कबल 3 बरस में सरकारी और निजी शोबे की शराकत के जरिए 1,25,000 डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस बनाने का ऐलान किया था। इदारे ने सिर्फ 2 दिन में 50 फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस तैयार कर लिए हैं। मंसूबे से 2,50,000 लोगों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा और पोस्ट का नेटवर्क मुल्क के हर शहर, हर गांव में फैलाया जाएगा। डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस में दस्तयाब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए बिलों की अदायगी, रकूम की मुंतकली, तालीमी इदारों की फीस और 200 से ज़ायद फाइनेंशियल सर्विसेज समेत बहुत सी दूसरी सहूलियात मैसर होंगी। नाज़रीन, वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि कौमी राबता कमेटी के फैसले अवामी मफाद में होते हैं और इस कमेटी में सबकी मुशावरत शामिल होती है। उन्होंने कहा हुकूमत की कोशिश है कि जो शोबे मुतासर हुए हैं उनकी बहाली के लिए इक़दाम हो सकें। नादा सेंटर टेक्सला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि कोरोना के वबा ने मईशत और समाजी जिंदगी को मुतासर किया है। हुकूमत सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। और पंजाब के आइंदा माली साल के बजट के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इजलास खिताब और सूबे में कोरोना वायरस के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से ताहिर जाफरी की रिपोर्ट में। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि माली साल 2020-2021 के बजट में सेहत और समाजी सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी जाए और गैर जरूरी अखराजात कम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बजट हकीकी एदाद शुमार पर मबनी होगा जिसमें आम आदमी की फलाह पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बाइस कमजोर तबकों को रिलीफ दिया जाएगा। मुशीर बराए इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर सलमान शाह ने पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की मईशत को मजबूत करने और महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के तनाजुर में कारोबार और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की हिकमत अमली तैयार
तैयार कर ली गई है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां अस्पताल लाहौर में कायम सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्हें कोरोना की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हिदायत की कि कोरोना के मरीजों के अहले खाना को रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की सेहत के बारे में आगाह किया जाए। वजीर सनत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कैंप ऑफिस लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बायस मईशत तवील लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना वायरस के फैलाव का सबब है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारों ने कहा कि कोरोना के केसेज में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक है, जिसके लिए हंगामी इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाला तिब्बी अमला भी बड़ी तादाद में कोरोना का शिकार हो रहा है। पीएमए ने हुकूमत से अपील की कि एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग की इस्तादाद कार को बढ़ाने के साथ साथ एसओपीज पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। पेशावर से मुदस्सिर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में माहौल कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। कोरोना के हवाले से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई है और मुतअद्दिद दुकानों और मार्केटों को जुर्माने जबकि बास को सील किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपेसिटी थी, टेस्टिंग कैपेसिटी पहले दिन वो 20 थी। अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त तकरीबन 2800 कैपेसिटी पे हमने पहुंचाया और इसको आगे हम लेकर जा रहे हैं। हम अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जो लेबॉर्ट्रीज है उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में हमने 5000 और फिर इस तरीके से 10,000 तक पहुंचाना है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में गंदम और आटे का मामला वजीर आजम के सामने उठाएंगे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में है। जहाँ तक पेट्रोलियम की मसनूआत का ताल्लुक है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे सूबे में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वो कार्रवाइयाँ कर रही है। जहाँ पे वो शार्टेज आ रही है उस हवाले से हमारे वज़ीर आला साहब ने वफाक के साथ इस चीज को टेकअप किया है। अजमल वजीर ने कहा कि बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। एनडीएमए के ताउन से सूबे के 49 अस्पतालों की तिबी अमले को कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिफाजती सामान की 7वीं खेप मुहैया की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जम बहक होने से सूबे में अमवात की तादाद 575 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 486 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। अब तक सूबे में सेहतियाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 3542 है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। नाज़रीन, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल से ही कोरोना वायरस से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इसी हवाले से देखते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अब तक कोरोना वायरस के 38,108 केसेस सामने आए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और सिर्फ जरूरी कामों के अलावा बिला वजह घरों से बाहर न निकलें और बाहर निकलते वक्त मास्क पहने, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और हुनैद लाखानी ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची को यौमिया 300 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस अहम मसले पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई। 2007 से 2020 तक आबादी तो बढ़ी, एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं है। हुकूमत सिंध ये नहीं बता सकती कि सन 2030 में कराची की पानी की जरूरत क्या होगी और वो पानी कहां से आएगा। अगर पिछला मंसूबा डिजाइन और एक्नेक से अप्रूवल लेने में और अवार्ड करने में 10 साल लगते हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैतुल माल सिंध के सरबराह हुनैद लाखानी ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से मुल्क का सबसे ज्यादा कमा कर देने वाला शहर कराची बदतरीन पानी बहरान के मसाइल का शिकार है। पानी बुनियादी हक है, जरूरत है। लोग खुराक के लिए लड़ रहे हैं, लोग जो है बेरोजगारी की वजह से लड़ रहे हैं, लोग पानी की वजह से अपने घरों को बेच रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते जा रहे हैं। पीटीआई सिंध के सदर हलीम अली शेख ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में स्टील मिल्स 10 अरब रुपए मुनाफे से 460 अरब रुपए के खसारे में आ गई है। स्टील मिल को
सफेद हाथी बनाने में, स्टील मिल को एक फायदा मंद फौलाद साग फैक्ट्री होने के मिल होने के बाद जो जनाजा बनाया है, ये पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया। 10 साल इसको लूटा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में स्टील मिल भी चलेगी और गरीब के घर का चूल्हा भी जलेगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हुकूमत ने बैनुल सूबाई और बैनुल इस्लाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के साथ मशरूत है, जिसमें मुसाफिरों और बस अमले को हर सूरत हिफाजती मास्क पहनने की हिदायत के साथ बसों, कोचों और वैगनों में हैंड सैनिटाइजर की सहूलत लाजमी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके पशीन में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब और नादार घरानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान का गरीब तबका और दिहाड़ीदार अफराद मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि हमें आलमी वबा की वजह से हालिया लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। और अब आपको बताएं कि PTV से नश्र होने वाला तारीखी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ड्रामे में मुनफरिद धुन पर पड़े गए तराने को उर्दू शायरी में आवाम तक पहुंचाया गया। कराची से जिशान अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू डबिंग में पेश किए जाने वाले तर्किश ड्रामे अर्तुगरुल गाजी को यूट्यूब चैनल पर 52 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 53 करोड़ से ज्यादा व्यूज इंतहाई कम दिनों में हासिल हुए हैं, जिनमें हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा है। अर्तुगरुल गाजी जहां कामयाबी की नई मनाजिल और रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है, वहीं लोगों के जहनों में मुसलमानों के शानदार अजमत रफ्ता के अदवार की याद भी ताज़ा कर रहा है। जुल्फ़िकार से बेहतर कोई देख नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है। जुर्रत व बहादुरी, अल्लाह पर कामिल यकीन और पुख्ता ईमान की मिसालें पेश करता यह ड्रामा नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन चुका है। मैंने रूह की गहराइयों तक तुमसे मोहब्बत की है हलीमा सुल्तान, मेरी मौत पर आंसू न बहाना। आखिरी सांसों तक मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की शहादत है और दूसरी चीज तुम्हारी मोहब्बत है। सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से इस हवाले से कई नगमे और तराने पेश किए गए हैं। वहीं कराची से ताल्लुक रखने वाले नाज़िर नुमान शाह ने भी अर्तुगरुल के तराने को उर्दू शायरी में नाजरीन के लिए तैयार किया है। तराने में मुसलमानों की हिम्मत और बहादुरी, निडर तबीयत और दिलेरी की सिफात बयान की हैं, जो कि एक सच्चे मुसलमान का खासा है। इस तराने को सुनकर रगों में खून भी गर्मा जाता है। एक अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मतवाले हैं। रग रग में ईमान बता है, सीनों में कुरान बता है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक़ हैं हम राही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। इससे कबल नुमान शाह ने अल्लाह ताला के मुबारक अस्माए हुस्ना के साथ साथ दीगर नातों को अपनी खुशलहान आवाज में पेश किया है। वो अर्तुगरुल गाजी को उर्दू डबिंग में पेश करने पर PTV के शुक्रगुजार हैं। अर्तुगरुल का जो थीम सॉन्ग है वो इनके अपने लैंग्वेज में था, तो मैंने सोचा कि इसको उर्दू में होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की। अगर आप एक जज्बे और जुनून और आप किसी विजन के तहत कोई काम करें तो फिर अल्लाह ताला भी उसमें आसानी पैदा कर देता है। अर्तुगरुल गाजी रोज बरोज नाजरीन को अपना गर्विदा बनाता जा रहा है। ताहम इसकी मकबूलियत को देखते हुए इसे हफ्ते में 4 दिन नशर किया जा रहा है, जो किसी भी प्रोग्राम की बेपनाह कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। जिशान खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान टेलीविजन की इंतजामिया ने एक प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान के नक्शे के हवाले से गलत तस्वीर नश्र होने का सख्त नोटिस लिया है। MDPTV आमिर मंजूर का कहना है कि इस नौयत की संगीन कोताही इदारा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और गलती के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी।